Wait for 1 or 2 minutes. We will start our class after joining the students. Okay, now we are going to start with it. Now we will move forward with the next segment of the chapter light. That is the refraction of light. Okay, साउंड क्लियर है सबको? आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व किए थे। आज रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे और बीच बीच में रिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल भी बनाते रहेंगे, ठीक है? तो दोनों टॉपिक्स को हमको साथ लेकर चलना है। आज का जो टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े थे तो चीजें वो मिरर से रिलेटेड था। अब लेंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो होगा थोड़ा सा टॉपिक चेंज होगा, फार्मूला चेंज, कॉन्सेप्ट मैक्सिमम वही होगा। इसीलिए हम लोग बहुत स्लोली चले रिफ्लेक्शन में, यहाँ पर थोड़ा फास्ट चले। न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगा, ठीक है? पहले सारे बच्चे ज्वाइन करें, एक एक करके बीच बीच में करोगे तो फिर दिक्कत होगी। ध्यान से देखना। सबसे पहला है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्लियर करते चलेंगे तो समझ में आएगा। अभी तक जो पढ़ रहे थे ध्यान देना, रिफ्लेक्शन, अभी जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। ध्यान देना, both are the property associated with light। यहाँ रिफ्लेक्शन में पढ़े थे ओपेक सरफेस के बारे में, नेचर जो था ओपेक। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट सरफेस के बाद ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे पढ़े थे स्ट्रेट लाइन पाथ used in reflection, single medium was available. Light coming from source after reflection, it bounces back in the same. So single medium was there, and whenever light travels without any obstacle in the same medium, it follows straight line path. इसका नाम दिए थे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सिंगल मीडियम था यहाँ, टू मीडियम्स, मिनिमम टू मीडियम्स
are required for the phenomena of reflection of light. So what will happen? The straight line path will not be followed. It will be only followed when it is moving in one. So here there will be bending straight line path is bending of the path of light. So these are the basic differences which you can see or through which you can say that how it is different from reflection. So these are some of the points. So whenever the surface, the nature of the surface will be transparent, then only reflection will occur. Initial introduction. This is the initial introduction. Later we will see in some of the cases, even there is a single medium, still refraction may occur. We will see further. The transparent medium, second, minimum two mediums are required. Third, bending of the path of the light will occur. The straight line path will become curved. Next, the speed of light constant. The speed of light change. These are the basic differences. Just see why I have written such type of differences, so that we have already gone through this topic. Now you are moving to this topic. So first of all, you need to have difference. देख लो जी, बहुत लोग पढ़ते हो, किताब में पढ़ते हो, यहाँ पढ़ते हो, वहाँ पढ़ते हो, चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जब दो डिफरेंट फेनोमेना होते हैं तो वी आर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तो किताब में सब लिखा हुआ नहीं है, हम इसे जानते हैं, कोई नया चीज तो बता रही थी, कोई भी चीज नया नहीं है, लेकिन वी हैव सिंपली डिफरेंशिएटेड बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत अजीब लगता है सर, पूछता नहीं है, अगर पूछा तो पूछा तो जब पढ़ा हुआ टॉपिक्स है हमें, so we can have so many points, many more points than we can. अब कोई नया चीज नहीं है, सब जो जानते हैं, ठीक है? तो you need to have a command so that you can have differences. अब हमको पता चलेगा कि अच्छा रिफ्रैक्शन में हम लोग पढ़ना है ट्रांसपेरेंट मीडियम के बारे में। जब भी लाइट स्ट्राइक करेगा नेचर सब कुछ विल बी ट्रांसपेरेंट। सिंगल मीडियम से कम यहाँ तक आता है, यहाँ पर कम से कम दो मीडियम चाहिए, मीडियम चेंज होंगे then only the phenomenon of refraction will occur. That's why we have written minimum two mediums. So these are some of the points which comes under the basic or initial introduction, so that we can have a comparison between refraction and reflection. देख लो, कोई डाउट है कहीं पे तो बोलो। किसी तरह का कोई डाउट है किसी बच्चे को कि कैसे और क्यों, तो बोलना है। कुछ अभी नया हम लोग नहीं पढ़े, अभी हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट नहीं किया, बस इसी की मदद से ये टॉपिक का डिफाइन कर लेंगे। ठीक है जी, तो चलो आगे बढ़े। एक दो तीन चार पॉइंट से स्टार्ट किए हैं, अभी और मेनी मोर पॉइंट्स कैन बी रिटन, लेकिन अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली आएगा कि हाँ ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते, खुद जानोगे तुम लोग। हम बताए हैं तुम लोग को कि किताब पढ़ हमारे पढ़ाने के बाद उस टॉपिक को पढ़ो, और तब देखो कि क्या नया चीज कुछ है तो नहीं, जो चीज हम पढ़ा रहे हो वही चीज है, अपने वे में पढ़ा रहे, इलेबोरेट करके पढ़ा रहे, उसको आसान बना के पढ़ा रहे। तो आप पढ़ोगे इसके बाद किताब, तो दैट बिकम्स वेरी सिंपल। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो रिफ्रैक्शन में हम लोग को मिल पाए कि सर यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मीडियम का बात करेंगे, ट्रांसपेरेंट। दूसरा मिल गया कि मिनिमम, और यू कैन से एट लीस्ट टू मीडियम्स आर रिक्वायर्ड। ध्यान देना,
कम से कम लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 5 जितना होगा। whenever there will be change in medium, each and every time phenomena of refraction will take place. तो ये हुआ। अब हुआ कि सर एक्चुअली what happens, and in one word, I'm not going to define, I'm just asking you in one word only, how the refraction of light can be written. Refraction of light means what? कोई बताओ। ये नहीं कहना कि सर अभी पढ़ाना शुरू किया हम लोग से पूछ दिए। सारा क्लास 8 वाला एंड ऑलरेडी क्लास 8 पढ़ के सारे बच्चे आए हुए, तो क्लास 8 के ही आधार पर बताओ। 10 वाला हम बताएंगे, 8 वाला बताओ कोई बच्चा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करो एक वर्ड में। ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने कहा एक वर्ड, एक वर्ड में। देखो डायरेक्शन चेंज होता है, ये एक वर्ड है। डायरेक्शन चेंज होता है, ये एक सेंटेंस हुआ, एक वर्ड। एनीवन? शॉर्ट में देखो, एक वर्ड का मीनिंग समझो तो लोग इंग्लिश के स्टूडेंट को। वर्ड का मतलब होता है और सेंटेंस का मतलब अलग होता है। वर्ड मैंने सिंपली बोलो बेंडिंग, ये हुआ एक वर्ड। अगर बेंडिंग ऑफ लाइट बोले तो 3 वर्ड, लाइट तो पढ़ ही रहे, केवल बेंडिंग बोलो, ये एक वर्ड में हुआ। आप समझ लो कि बेंडिंग किसका, कौन बेंड करता है, बता सकते हो तुम लोग? लाइट रे बेंड करता है। अब हमें बताओ कि मेरे हाथ में ये है प्लास्टिक, मान लो कि ये वायर है कॉपर का, एल्यूमिनियम, तो हम इसको ऐसे बेंड कर ऐसे मोड़ दिए, तो क्या उसी तरह से लाइट को भी मोड़ते हैं? बोलो। तब कैसे बोल रहे हो बेंडिंग ऑफ लाइट? अभी बोले तुम लोग तो बेंडिंग ऑफ लाइट, तो ये तार है इसको हम ऐसे मोड़ दें, ये उसको बेंड। तो लाइट को तो हम पकड़ नहीं सकते हैं, तो उसको बेंड करें। तो यही कहना चाह रहे कि किसका बेंडिंग। देखो सब तुम लोग जानते हो, अभी पढ़ कर 8 में, लेकिन एग्जैक्ट नहीं जानते। और वही हम बोले थे क्लास 10 में परफेक्ट बनाएंगे, परफेक्ट। सब जानते हो, परफेक्ट नहीं जानते। तो वही चीज हमको जानना है, बता दो कि बेंडिंग बोल दिए तार मोड़ते हैं, कोई और भी चीज है उसको बेंड करते हैं। यहाँ पर बेंडिंग का मतलब किसको बेंड करते हैं, कौन मुड़ता है? ध्यान से देखना, ये लाइट आ रहा है, ये लाइट रे है, लाइट रे सीधा चलेगा कब तक? जब तक एक मीडियम में चलता है। इसके नाम दिए थे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर बोला कि जैसे मीडियम 2 हो, चेंज ऑफ मीडियम होगा। सपोज करो कि यहाँ से मीडियम पर अलग हो जाए, ये सेकंड में, तो जैसे ही का अनदर मीडियम, इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, अपने रास्ते से डेविएट करेगा। तो ये अब इधर सीधा ना जाए, ऐसे नहीं जाएगा, आइधर ये इधर से चला गया तो इधर से। तो देखो यहाँ पर बेंडिंग हुआ, जाना था ऐसे और जा रहा वैसे, फिर वो सीधा जाएगा जब तक ये देखना। ये बेंडिंग का मतलब है कि डेविएशन फ्रॉम इट्स पाथ। इसका मीनिंग समझो, डेविएशन फ्रॉम इट्स पाथ, ये हुआ इस बेंडिंग का मतलब, अपने रास्ते से डेविएट करना। बेंड मतलब दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, नॉट एन मटेरियल दैट इट कैन बी कर्व्ड। दिस इज द मीनिंग ऑफ द बेंडिंग। बेंडिंग किसका हो रहा है? उसके पाथ से डेविएशन जो हो रहा है लाइट का, उसको हम बेंडिंग कर रहे हैं। आवाज आ रही है स्पष्ट?
फैन ऑफ कर दे रहे हैं, स्पष्ट आवाज जाएगी। तो बेंडिंग किसको कह रहे हैं कि लाइट जब ट्रेवल करता है तो हम लोग बोलते हैं कि सर लाइट मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, तो हुआ कि सर कोई देखा है इसको, तो हम लोग बोलते हैं कि लाइट देखे हैं नहीं देखे, उस पर बेस्ड बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जिसमें पिन होल कैमरा भी था, जो दिखाता है कि लाइट follow the straight line path, which is simply known as rectilinear propagation of light. And if you say that, sir, can we observe? Yes, in class 10 we will have one of the point in chapter human eye, Tyndall's effect. केमिस्ट्री का टर्म है। टिंडल्स इफेक्ट में हम लोग देखेंगे कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइट में चलता है वो दिखेगा, दैट विल बिकम विजिबल। तो टिंडल साइंटिस्ट का नाम था, he observed and he shown and simply he demonstrated, we can also demonstrate। कहोगे सर आप दिखाइए, दिखा सकते हैं, you can also show, you can demonstrate in the classroom। When we will reach in that chapter, we will discuss about the path। So here see, this is the path। When there is change of medium, it deviates from its path। अपने path से वो bend कर गया, इसी को bending बोले। इसी deviation का नाम है bending। तो हम लिखे थे कि bending of light ray नहीं, bending of light ray from its path, और deviation of light ray from its path। कब? जब मीडियम चेंज। इसी को उलट कर लिख सकते हो कि जब ये पाथ कब चेंज हो रहा है, जब मीडियम मींस whenever there will be change in medium, the light ray will deviate from its path, and this bending will be considered as refraction of light। ये हुआ डिटेल। तुम लोग क्या करते हो, किताब से डेफिनेशन कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पूछ दिए कि बेंडिंग लाइट होता है जी, तो यस। ये हुआ भी क्लियरेंस कि बेंडिंग लाइट का नहीं होता, उसके पाथ से डेविएशन। तो अब हम यही सब चीज को बोले थे, क्लास में पढ़ाना नहीं है, समझाना है। इसी चीज को हम लोग को क्लियर करना है, जो पढ़े हैं उसको 100% श्योर करना। क्लियर हो गया सबको? भी नहीं कैसे क्लास में पूछेंगे, और क्लास में भी हमको तुम समझाओगे। ध्यान रहे, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेंगे तुम्हारा काम बढ़ेगा। हमारे पढ़ा लेने के बाद, समझा देने के बाद तुम हमको समझाओगे, तब हमें पता चलेगा कि अगर तुम समझा पाए, तुम हमारी बात को समझे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कोई बीच में ज्वाइन नहीं करा बच्चा, देखते रहना, नहीं तो ज्वाइन करोगे। बच्चा भी कम ही ज्वाइन कर रहे हो, देखो तो 13 हो गया। चलो, कम बच्चे हो, कम पढ़ रहे हो, सही पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नाउ वी विल रीड द डेफिनेशन, वेरी सिंपल डेफिनेशन। द बेंडिंग ऑफ द लाइट रे, ध्यान देना। अब हम बेंडिंग ऑफ लाइट रे लिख दिया, तो अभी मत कहना कि बेंडिंग ऑफ पेन मैंने पेन किया। इसका मीनिंग हम समझा चुके। बेंडिंग ऑफ लाइट रे का मतलब डेविएशन फ्रॉम इट्स पाथ। तो इतना समझाए जो लिखेंगे तो कम है। The bending of the light ray when it travels or moves from one medium to another is called refraction of light। ठीक है, ये हुआ डेफिनेशन। तो इस बेंडिंग का मतलब होती है डेविएशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। द डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। कब? यहाँ काउज भी साथ में रहेगा। व्हेन इट ट्रेवल्स और मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू, ये उसमें इंक्लूडेड होगा, ध्यान रखना। तो दिस इज द डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं कि तुरंत इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग को देखते हैं। लाइक
sir, some of the examples which we can observe in our day to day life, तो वो सिंपल होता है। तो क्लास 8 वाला ही देख लो, पढ़े थे कि कोई भी हम लोग स्टिक हो, घर के कोई भी यूटेंसिल्स जो स्ट्रेट हो, उसको पानी में डालते हैं तो टेढ़ा दिखता है। था क्वेश्चन कि व्हाई पेंसिल अपीयर्स बेंट व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर। पेंसिल सीधा उसको पानी में डालते हैं तो जो हिस्सा डूबा हुआ है पानी में वो टेढ़ा दिखता है। घर में भी देख रहे ना, कोई स्टिक भी ले लो बड़ा सा सीधा, पानी में डुबाओ, जो हिस्सा डूबा हुआ है पानी में वो टेढ़ा दिखेगा। अब कहेंगे कि सर पानी वाला हिस्सा टेढ़ा क्यों दिख रहा, ऊपर वाला क्यों नहीं दिख रहा टेढ़ा? तो कारण यही है कि पानी एक मीडियम है और तुम हो एयर में, तो वाटर एयर, एयर वाटर, दो मीडियम, दो मीडियम में लाइट ट्रेवल किया तो रिफ्लेक्शन, और ऊपर वाला हिस्सा वो हाई एयर में, तुम भी हो एयर में, तो एयर एयर है, नो रिफ्लेक्शन, दैट्स व्हाई इट डजंट अपीयर लाइट। क्लियर ना? तो some many more examples can be explained and we will explain that phenomena with the help of ray diagram when we will have some of the rules and laws of the reflection in detail, then we can explain that. अभी बस सिंपल सा फिनोमेना याद दिला कि हम लोग पढ़े थे, एक कि व्हाई पेंसिल अपीयर बेंट व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर, सेकंड पढ़े थे कि एक कॉइन को हम लोग ग्लास में रखते हैं, उसमें जब व्हेन वाटर इज पावर्ड इनटू इट इट अपीयर टू फ्लोट। दो, तीसरा था कि व्हाई पॉन्ड्स अपीयर सैलोवर, तालाब एकदम साफ जो होता है, कभी भी तालाब वगैरह में तुम लोग देखोगे जो बनाया होता है आर्टिफिशियल तालाब, उसका पानी दिखता है, उसका बॉटम भी दिखता है, तो पानी अगर ज़्यादा ना हो तो दिखेगा, तुमको लगेगा, अंदाज लगाओ कि सर इतना पानी होगा, जब पैर डालोगे तो इतना से ज़्यादा, मतलब हम जितना अंदाज लगाते हैं उससे पानी ज़्यादा, तो वो लेस सैलोवर दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, ये क्यों हो रहा है? All these are the examples of refraction of light. Many more examples can be given that is related from our surrounding or atmosphere, and that will be further explained on the basis of atmospheric refraction. All the phenomena which is occurring in our atmosphere comes under atmospheric refraction. उसमें हम लोग पढ़ेंगे सब, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार वगैरह, सन अपीयर्स रेड, स्काई अपीयर्स ब्लू, all are the phenomena or simple type of refraction that natural phenomena are not true, that is only due to refraction of light. ये ध्यान देना, ये आकाश का कलर है ब्लू है, सनराइज सनसेट के समय लाल कलर दिखता सन का, वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण है, रियल फिनोमेना नहीं। तो एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे। अब आगे बढ़े, तो इसी में आता है सर रिफ्रैक्शन का कॉज बताए, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, आखिर रिफ्रैक्शन होने का कारण क्या है? क्वेश्चन आता है कि रिफ्रैक्शन होने का कारण क्या है, तो हम लोग को अलग से नहीं ढूंढना है, तुम लोग को हम बार बार बोले हैं कि जो पढ़े हो उसी में उसका आंसर छिपे हुए हैं, कहीं नया नहीं जाना है, तो उसी में मिलता है। तो अभी डिफिनीशंस पे आ जा तो हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा पॉइंट्स। याद करो कि रिफ्रैक्शन के कारण पहला कारण तो बोले कि व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मतलब मीडियम जरूरी है तभी रिफ्रैक्शन होगा। तो पहला कारण हो जाएगा क्या? चेंज ऑफ मीडियम। एक दूसरा कॉज कोई तुम ही लोग बताओ तो, सेकंड कॉज बोलो, बोलो जी। सेकंड कॉज किताब तो आपसे नहीं देखना है, जो पढ़े हैं उसी से, या जो अब तक का नॉलेज है क्लास 8 वाला वो बता दो। नहीं
तो चेंज ऑफ मीडियम होगा तो चेंज हो जाएगा लाइट का स्पीड, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। whenever light changes its medium, its speed will change। वेरिएशन होता है जी स्पीड ऑफ लाइट का whenever there is a change in। तीसरा, ये सबका घुमा फिरा करके एक आंसर है कि मीडियम चेंज होना कब कहलाएगा सर। कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि मीडियम अलग अलग या मीडियम चेंज हो गया। सपोज हम कहेंगे कि सर अगर एयर से वाटर में जा रहा है सर तो दिख रहा है कि वाटर में जा रहा है या वाटर से जा रहा है। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द मीडियम and still bending is taking place, then on what basis you will say phenomena of refraction is taking place? So we will observe the speed of light. If it is constant, there is no change in medium. If it is varying or changing, it means there is change in medium। सबका कारण आखिर क्यों इसको हम अलग मीडियम कहते हैं, इसको अलग कहते हैं? On what basis they have been separated or distinguished? तो बोलता है चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी। ध्यान देना ऑप्टिकल वर्ड है लाइट से रिलेटेड, लाइट पढ़े ऑप्टिकल डेंसिटी। डेंसिटी बोलेंगे तो कोई सबस्टेंस का डेंसिटी हो जाएगा, ऑप्टिकल मींस लाइट से। चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडिया, ये 3 पॉइंट्स है। अब तीनों का घुमा फिरा के पहले तीनों पॉइंट देख लो, नोट कर लो, समझा दे कि हाउ ऑल 3 आर सेम। तीनों नया नहीं है, तीनों एक ही है। तो हम क्लियर कर दे रहे हैं, पहले इसको समझ लो, नोट कर। जैसे सपोज करो कि ये हम ऐसे ये कहें कि सर ये इधर ना इधर, तो सर इसको अलग कह रहे हैं, इसको अलग की सब। तो देखें कि इसमें लाइट का स्पीड अलग था, इसमें अलग हो गया, या तो बढ़ गया या घट गया, दोनों चेंज। तो स्पीड सर चेंज हुआ इसलिए इसको अलग मीडियम बोले, इसका। अब क्वेश्चन होगा कि स्पीड चेंज हुआ तो मीडियम का नाम अलग अलग। तो स्पीड चेंज क्यों हुआ, क्या कारण था कि स्पीड यहाँ यहाँ अलग हो गया? तब हुआ कि सर इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी में डिफरेंस है। सपोज करो कि यहाँ पे गैदरिंग ऑफ पार्टिकल ज्यादा है और यहाँ पे गैदरिंग ऑफ पार्टिकल कम है, तो इस हिसाब से ये अलग मीडियम होगा और ये अलग मीडियम। यहाँ ऑब्स्टेकल्स ज्यादा है तो यहाँ स्पीड घट जाएगा, यहाँ बढ़ा रहेगा, या इधर से इधर आएगा तो यहाँ स्पीड बढ़ जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो यहाँ बढ़ जाएगा। तो चेंज हो रहा है दोनों केस में, इसके लिए वर्ड आया चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी। एक्चुअली में यही ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रहा है, जिससे हो गया, और वही कॉजेज है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। 3 पॉइंट्स, और मेनली तुमको अधिकतर बुक में कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये व्हाट आर द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यू कैन राइट आइदर ऑफ दिस 3। तो ज्यादातर यही टॉपिक मिलता है स्पीड ऑफ लाइट के कारण से। तो उसका कॉज क्या है, क्यों चेंज हुआ स्पीड, इसके कारण या इसके कारण। क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को? बहुत सिंपल है, आसान बना बना के समझा रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, आराम से समझो। अब जरा इसको देखते हुए तुमसे कोई पूछे कि जो टर्म है मीडियम, ये मीडियम होता क्या है, बताओ कोई। मीडियम मीन्स व्हाट, मीडियम मीन्स व्हाट? जल्दी बताओ, सब लोग पढ़े हो, पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो। मीडियम है, भी मीडियम है, तो मीडियम मीन्स होता क्या? तो वो सिंपल सा कह सकते हो, थ्रू विच लाइट चैप्टर, तो लाइट के बारे में, लाइट कैन प्रोपगेट, शॉर्ट में जिससे लाइट प्रोपगेट हो, मूव करे। प्रोपगेट
propagation is simply moving, traveling through which it is moving. तो लाइट जिस जिस से चल सकता है, अब हम लोग बोलेंगे कि सर लाइट इस दीवार में चलेगा, तो दिस इज नॉट ऑप्टिकल डेंसिटी, इट इज नॉट रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। वहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करो, वाटर की बात करो, ग्लास की बात करो, प्रिज्म की बात करो, ग्लास स्लैब की बात करो, एयर की बात करो, इस सब मीडियम्स हैं which light can travel or light can pass। तो ये हमारा हो गया क्लाउड की। अब जरा आते हैं कि जो मीडियम पढ़े, तो इसी में हम लोग पढ़ लिए स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट देख लो, हम लोग पढ़े थे कि पहले वैक्यूम और एयर में लगभग सेम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पढ़े। एंड दिस इज द फास्टेस्ट और मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम। एयर में आइडेंटिकल है थोड़ा सा। दूसरा वाटर, वाटर में है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तीसरा है ग्लास, इसमें है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चौथे नंबर पे है डायमंड, 1.25 × 10⁸। ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ऐसा नहीं कि सर चार नहीं, और भी बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लिसरीन वगैरह भी मिलेगा, उसमें स्पीड अलग है। ज़्यादातर यूज यही चार मैक्सिमम। तो ये चार ऐसी याद होता है, याद रहता है, हम ऑर्डर ऐसे ऑर्डर में याद कर दो, इससे तुमको डिसाइड करने में बनेगा कि बेंडिंग का जो क्वांटिटी होगा हाउ इट विल वेरी, बढ़ेगा कब। तो ये सब बस एक बार दिखते हैं, देखते हैं, याद हो जाना चाहिए, रटना नहीं पड़ेगा, याद रखना। इस सब बहुत काम आएगा। सम ऑफ द न्यूमेरिकल आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, सो यू नीड टू कीप इट इन योर माइंड एवरी टाइम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इससे पता चलता है कि लाइट ट्रेवल्स विथ वेरियस स्पीड इन डिफरेंट मीडियम एंड इट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम। कोई कारण बता दो कि व्हाई लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम। कोई बच्चा सिंपल सा जवाब दो, व्हाई लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम। इसका कोई जवाब है किसी के पास? सही जवाब है, बिल्कुल सही, ठीक है, वेरी गुड। तो लाइट में पढ़े थे कि लाइट का ड्यूअल नेचर। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब मीडियम्स होंगे तो उसके पार्टिकल्स होंगे, उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में गैदरिंग ऑफ पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, इंटरमोलेकुलर स्पेस इज वेरी वेरी लेस। तो व्हेनेवर लाइट हैव टू पास थ्रू देम, दे नीड टू कोलाइड विद देम, सो देयर स्पीड गेट डिक्रीज। तो सॉलिड में स्पीड कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लाइट, साउंड, दो फेनोमेना है जिसको आपस में कंपेयर करके चलना है। साउंड जब पढ़ाते हैं तो लाइट से तुलना, लाइट पढ़ाएंगे साउंड। तो हम लोग साउंड पढ़े थे 9 में, उसमें याद होगा कि साउंड का स्पीड सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में अलग अलग है। साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा किस में है, सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में? बताओ कोई। और क्यों, ये भी हम पूछेंगे। नाम केवल नहीं ले रहे, ऑब्जेक्टिव नहीं, टिक मार दे सही हो गया। कोई बताओ जी, सॉलिड, लिक्विड, गैस किस में साउंड का स्पीड ज्यादा है? चलो अभी हम बोल नहीं रहे हैं, ये भी फॉर स्पीड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम बात कर रहे हैं अभी
साउंड के लिए। गैस में बोली ज्यादा, सॉलिड में हो गया सबसे कम, लिक्विड में उससे ज्यादा, गैस में सबसे ज्यादा। अब तुम्हारे सवाल पर हम आ रहे हैं, हाउ डज साउंड प्रोपगेट इन एनी मीडिया? साउंड किसी मीडियम में कैसे चलता है? अभी हम सही कुछ नहीं बोले हैं, अभी जो तुम्हारा जवाब है उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रूफ करेंगे कि अगर ये सही है तो कैसे और गलत है तो कैसे, दोनों सही प्रूफ करेंगे। अभी ये नहीं बोल रहे हैं हम कि सही है कि गलत, तुम बोली और लिख। अब हमको एक चीज बताओ, साउंड को बोले थे लॉन्गिट्यूडनल, वो पार्टिकल के मीडियम, जो मीडियम होते उसके पार्टिकल की मदद से मूव करता है। तो पार्टिकल्स गैस में दूर, तो साउंड को ट्रेवल करना तो एक मीडियम लेगा, साउंड एनर्जी को मूव करेगा फर्दर, उसको देकर लौटेगा, बैक एंड फोर्थ देगा वहां, क्योंकि बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा था, देने जाएगा फिर लौटेगा। और सॉलिड में टाइटली पैक है, तुरंत अगले वाले को दिया, अगले वाले को दिया, अगले वाले को दिया, तो उसमें एनर्जी लॉस जाता। तो साउंड का स्पीड सॉलिड में ज्यादा, लिक्विड में कम, गैस में सबसे कम। क्लियर? जल्दी बोलो हाँ या ना। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड। अब आते हैं कि लाइट, लाइट को ऑब्स्टेकल, लाइट में मीडियम्स आर नॉट सपोर्टिंग, वो हेल्प नहीं कर रहा है कि उसके एनर्जी को कैरी करने में मदद कर रहा है, वो ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जितना कम पार्टिकल होगा उतना उसको मदद मिलेगा। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये लाइट के लिए, वो साउंड के लिए था। स्पीड इन साउंड लिक्विड में और सबसे ज्यादा गैस, वही ना गैस है एयर, लगभग वैक्यूम के बराबर है मैक्सिमम। तो अब अपना जवाब को खुद, जो तुम बोली सही है कि गलत। हमारा काम है कि 2 + 2 5 लिखा हुआ है, तो वो सही है अगर तो कैसे, और गलत है तो कैसे, दोनों बताना हमारा। तो हम दोनों को क्लेरिफाई कर दिए कि साउंड के केस में particles of the mediums are supporting to carry the energy forward, but in the case of the light they are not supporting, they are simply acting as an obstacle. That's why this is the reason. Note down, sound light दोनों को हम स्पीड नीचे लिख दिया, v for speed, s for solid, l for liquid, g for light travel fastest in, sound travel fastest in solid। कोई डाउट है तो तुम लोग क्लियर करो। गैस में सबसे कम साउंड का स्पीड है अबाउट 331, 342 था, वाटर में 1498 चला जा रहा था, लिक्विड में हो गया वाटर 1498 या 1500, और जब सॉलिड में जाते थे एल्युमिनियम है,